برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں خوف اور بے یقینی کی فضا۔ منگل کی رات شہر کی مرکزی مسجد مانچسٹر سینٹرل ماسک میں جب تقریباً 2000 افراد نماز تراویح ادا کر رہے تھے تو مبینہ طور پر ایک شخص کلہاڑی اور چاقو لیے مسجد کے اندر داخل ہو گیا۔ پولیس کے مطابق مشتبہ شخص کو فوری طور پر حراست میں لیا گیا ہے، جبکہ مقامی لوگ اس واقعے کو مسلمانوں کے خلاف بڑھتے ہوئے رجحانات کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ برطانیہ میں مساجد کو اس نوعیت کے خطرات یا حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہو۔ ماضی میں بھی مذہبی شناخت کی بنیاد پر مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ اسلاموفوبیا کے واقعات کو ریکارڈ کرنے والی ایک تنظیم کے مطابق سن 2023 میں حماس کے اسرائیل پر حملے کے بعد برطانیہ میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پر مبنی واقعات میں تقریباً 200% اضافہ دیکھنے میں آیا۔ آخر اس اضافے کی وجوہات کیا ہیں اور برطانیہ میں مقیم مسلمانوں کے تحفظ کے لیے حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ میں ہوں غضنفر حیدر اور یہ آج BBC نیوز اردو کے پروگرام جہانما کی ہماری ٹاپ سٹوری ہے۔ اس کے علاوہ پروگرام میں دیکھیے گا امریکہ اور ایران کے درمیان جنیوا میں بالواسطہ مذاکرات کا تیسرا دور۔ خطے میں کشیدگی کے پیش نظر امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں اپنے اہم فوجی اثاثے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ اور معروف فیشن برانڈ گوچی کو مصنوعی ذہانت سے تیار کردہ تصاویر شائع کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر شدید تنقید کا سامنا۔ لیکن کیا صرف گوچی ہی فیشن میں AI کا استعمال کر رہا ہے؟ منگل کو پیش آنے والے واقعے کے بعد مانچسٹر پولیس نے ایک 40 سالہ شخص کو ممنوعہ ہتھیار رکھنے کے شک میں گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ایک اور مشتبہ فرد کی تلاش جاری ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے ساتھ کام کر رہی ہے، تاہم اس واقعے کو باضابطہ طور پر دہشت گردی کا واقعہ قرار نہیں دیا گیا ہے، جس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں۔ مانچسٹر سینٹرل مسجد کے مطابق اس وقت مسجد کے اندر تقریباً 2000 نمازی موجود تھے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی اطلاع ڈیوٹی پر نہ ہونے والے پولیس اہلکار نے دی تھی، جو اس وقت مسجد میں موجود تھا۔ مانچسٹر سینٹرل مسجد کا واقعہ پہلا نہیں ہے، اس سے پہلے برطانیہ بھر میں اس نوعیت کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اکتوبر 2025 میں ایسٹ سسیکس میں پیس ہیون ماسک کو نامعلوم افراد نے نظر آتش کر دیا گیا۔ اکتوبر 2023 میں حماس کی جانب سے اسرائیل پر حملے کے بعد برطانیہ میں اسلاموفوبیا یعنی مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز واقعات میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اسلاموفوبیا یعنی اسلام دشمن واقعات کو ریکارڈ کرنے والے آزاد ادارے ٹیل ماما نے بتایا کہ اسے 2023 اور 24 کے دوران مسلمانوں کے خلاف نفرت کی 11,000 رپورٹس موصول ہوئیں، جو نفرت کے واقعات میں 235% اضافہ ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف جہاں حکومت نے کل ہونے والے واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے، وہیں اس کا کہنا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو بہت ہی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ لیکن مانچسٹر کے ممبر پارلیمان افضل خان نے کہا کہ یہ فار رائٹ کے سیاستدانوں کی جانب سے مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنانے کا نتیجہ ہے۔ یہ بلا شبہ اسلاموفوبیا ہے۔ برطانیہ میں اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کے خلاف بڑھتی نفرت اور تشدد کی وجوہات اور اس کے اثرات پر بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں صحافی اور تجزیہ کار ثقلین امام۔ ثقلین امام، پروگرام میں آنے کا شکریہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ برطانیہ میں اسلاموفوبیا کے جو بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، ان کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ تو برطانیہ کی اپنی تاریخی پس منظر ہے۔ یہاں پہ بہت زیادہ مسلمان آئے ہیں، خاص طور پہ جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش وغیرہ یا افریقی ممالک میں جو ان کی کالونیز رہی ہیں، تو ان کالونیز سے بہت سارے لوگ جو ہیں، جو ان کے پہلے تو رعایا تھی، اب وہ یہاں بھی آ گئی ہے، اور یہ پہلے خود ہی لے کر آئے ہیں ایک لیبر کی صورت میں۔ لیکن جب برطانیہ اتنی طاقتور پہ مالی طور پر نہیں رہا ہے، تو یہاں پہ جو مالی مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ان مالی مسائل کی وجہ سے جو لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کے وسائل کم ہو گئے ہیں، ریاست کے پاس پیسہ نہیں ہے، علاج معالجے کے لیے جگہ نہیں ہے، جو سوشل فنڈز ملا کرتے تھے یا بینیفٹس ملا کرتے تھے وہ کم ہو گئے، تو اس کا ایک آسان ہدف جو ہے وہ کمزور اقلیتی گروپ کے طور پہ مسلمانوں کو، بلکہ دوسرے کو بھی بنایا، سیاہ فام کو بھی بنایا گیا، لیکن مسلمان اس لیے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، نشانہ بن رہے ہیں ان کے، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ایک کچھ اور چیزیں بھی، شناخت کے مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جس طرح آپ نے ابھی بات بھی کی کہ غزہ کا مسئلہ ہے، یا اس سے پہلے 9/11 کا مسئلہ تھا، یا اس سے پہلے دیگر جو مسائل تھے برطانیہ میں، خاص طور پہ اسکن ہیڈ جیسے سپریمیسسٹ، وائٹ سپریمیسسٹ بھی ہوتے تھے، تو وہ ایک کنٹینیوٹی ہے۔ اب ایسے گروہ جو پہلے، یعنی آپ سمجھے 2 دہائیاں پہلے یا 3 دہائیاں پہلے کمزور ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ سے ان مالی وسائل کی وجہ سے جو برطانیہ میں پیدا ہو رہے ہیں، اب ان کے لیے ایک نئی ایک شناخت بن رہی ہے، ضرورت بن رہی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو ورکنگ کلاس کے لوگ بھی تھے، مثلا بریگزٹ بھی آپ نے دیکھا، تو بریگزٹ میں بھی اصل میں اقتصادی اور مالیاتی مسائل تھے جن کی وجہ سے بریگزٹ ہوا، اور جی، وہی لوگ جو بریگزٹ کے حامی تھے وہ اب اسلاموفوبیا کی طرف بھی جا رہے ہیں، مسلمانوں پر حملے بھی کر جی۔ رہے ہیں۔ اچھا ثقلین صاحب، یہ بتائیں کہ برطانیہ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کے کیا تاثرات ہیں، وہ اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو برطانیہ میں مسلمان ہیں وہ اس وقت کافی زیادہ
आप कह सकते हैं कि परेशान भी हैं। हालाँकि उनको याद करना चाहिए कि इसी मुल्क की उन्होंने बहुत खिदमात की है कि इंटरैक्शन बढ़ाना चाहिए, क्योंकि कोई तकरीबन समझे कि दूसरी जंग के वक़्त कोई 2.5 मिलियन यानी 25 लाख लोगों ने बरतानिया के लिए जंग लड़ी थी, जो इंडिया से या पाकिस्तान के जो मौजूदा पंजाब है यहाँ से लोग आए थे लड़ने। और उन 25 लाख में से कम 8 लाख मुसलमान लोग थे, जो वहीं सिर्फ उन इलाकों से आए थे, पंजाब के और इस तरफ के इलाकों से, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा का इलाका भी कहते हैं। तो ये लोग उनकी कुछ बच्चे भी हैं या उनकी औलाद नस्ल जो यहाँ भी आई हैं, और ये उसके अलावा बहुत सारे और भी लोग आए हैं। तो बरतानिया के साथ इन लोगों का ताल्लुक जो है वो तारीखी है, लेकिन उस तारीखी जो मदद थी एक दूसरे के लिए, ताउन जो था, उसको लोग भूल कर आज के ताज़ा मसाइल में फंस गए हुए हैं, क्योंकि जी। जो मजदूर क्लास है वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रही है और अपने ताकतवर अमीरों के साथ तो लड़ नहीं सकते, लेकिन अपनी गरीब अक़लियतों पर हमले कर रहे हैं। अच्छा, बरतानिया में जो आजकल राइट विंग की सियासत हो रही है, जिसका ज़िक्र अभी आपने किया अभी, वो इन वाक़यात की जो है वो एक बड़ी वजह है। ये किस हद तक सच है ये बात? देखिए, असल में अगर देखा जाए तो ये फार राइट जमातें, जिसमें खासतौर पर रिफॉर्म्स पार्टी इस वक्त सर फहरिस्त आती है। इससे पहले इंग्लिश डिफेंस लीग भी थी, फिर आपको द टॉबी रॉबसन जो है उसका भी जिक्र आ रहा है, जो बहुत वाइट सुप्रीमेसिस्ट है। इस तरह के और भी कुछ लोग हैं। ये एक बड़ा अजीब मखमसा मैं नहीं समझता। ये होता यही है कि मामलात पहले से चल रही होते हैं। एक नफ़रत, आप इस वक्त देख लीजिए, शनाख्त का मसला है, जो जैसे कि मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज जो हैं, गुर्बत है, बजट की कमी है, कटौतियाँ हो रही हैं। तो इस सब के असरात हर शख्स की ज़िंदगी पर पड़ रहे हैं। तो अपना आसान हदफ जो है वो इस किस्म के आम जी, अक़लियतों को देख रहे हैं, लेकिन इन अक़लियतों को टारगेट बनाने के लिए जो जी, राइटिस्ट जमातें, खासतौर पर जो फार राइट है, वो जी, जी। बड़ी आसानी से उन शनाख्त और कौमियत पसंद या कौम परस्ती जी, वाले जी, जी। नारों को इस्तेमाल करती हैं। सटन से सकलान इमाम हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब रुख करते हैं ईरान का, जहां अमरीकी और ईरानी हुक्काम के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जनीवा में हुआ, जिसका मकसद तेहरान के जौहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक किसी मफाहमती हल तक पहुंचना है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमेशा की तरह धमकी दी है कि अगर जौहरी मुआहिदा ना हुआ तो वो ईरान पर हमला करेंगे। ये मुज़ाकरात ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में पिछली 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा फ़ौजी ताकत को इकट्ठा करके रखा है, और ईरान किसी मुमकिन अमेरिकी हमले के पेश नज़र अपनी तैयारियों को मजबूत बना रहा है। इसी माह के आगाज़ से अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं। ईरानी वफ़द की क़यादत वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कर रहे हैं, जबकि अमेरिकी वफ़द की नुमाइंदगी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर कर रहे हैं। ईरान के सदर ने इन मुज़ाकरात से कबल कहा है कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने का ख्वाहिशमंद नहीं है। हालांकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इन मुज़ाकरात के बाद अमेरिका और ईरान किसी मुआहिदे तक पहुँच सकेंगे या नहीं। खित्ते में अमन के लिए इन मुज़ाकरात को अहम समझा जा रहा है। मज़ीद तफसीलात BBC के क्रिश्चियन फ्रेज़र से, जो इस वक्त जिनीवा में हैं। आज की सूरत हाल को समझने के लिए गुज़श्ता साल मौसम गर्मा में पेश आने वाले वाक़यात पर नज़र डालना ज़रूरी है। ईरान में 3 अहम जोरी तनसीबात हैं, नतन्स, इस्फहान और फर्दो। गुज़श्ता गर्मियों में होने वाली 12 रोज़ा जंग, जिससे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कहा गया, के दौरान इन सब को निशाना बनाया गया था। सदर ट्रंप के मुताबिक ये तनसीबात तबाह कर दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद हम आज भी जोरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। मसला ये है कि बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के मुआयनाकारों को गुज़श्ता साल जून से इन मकामात तक रसाई नहीं दी गई। इसलिए दर हकीकत किसी भी तनसीबात की मौजूदा हालत के बारे में वाज़ेह इल्म नहीं, और ना ही तकरीबन 440 किलो अफजूदा यूरेनियम के बारे में कि वो कहाँ हैं। लिहाजा ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में अभी बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना और वाज़ेह होना बाकी है। मैं हूं गज़नफ़र हैदर और आप देख रहे हैं BBC न्यूज़ उर्दू का प्रोग्राम जहानुमा। और अब बात करते हैं ट्रेंडिंग की। इटली के मारूफ फैशन हाउस गुची को उस वक्त सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा है जब उसने मिलान फैशन वीक से कबल अपनी नई मुहिम में AI से तैयार करदा तस्वीर जारी की। इन तस्वीर पर वाज़े तौर पर लिखा था क्रिएटेड विद AI, यानी मसनूई ज़हानत के ज़रिए तख्लीक करदा, लेकिन इसके बावजूद तारीफ़ के बजाय इसे तनकीद का सामना करना पड़ा। ये मुहिम ऐसे वक्त में सामने आई है जब गुची अपनी गिरती हुई फ़रोख्त के बाद ब्रांड को नई समत देने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया सार्फिन ने तस्वीर को मसनूई और सस्ती करार दिया। कुछ नाक़दीन का कहना था कि ये वीडियो गेम ग्राफिक्स जैसी लगती हैं, जबकि सवाल उठाया गया कि क्या लग्जरी ब्रांड्स को इंसानी हुनर की नुमाइंदगी नहीं करनी चाहिए।
गुची दहाइयों से दस्तकारी, अतालवी कारीगरी और इनफरादियत की अलामत समझा जाता है। लग्जरी की बुनियाद ही नायाबी पर होती है, जबकि AI लामहदूद नकल तैयार कर सकती है। यही तजाद इस बहस को हवा दे रहा है। ताहम गुची इस दौड़ में अकेला नहीं है। हस्पानवी रिटेल ब्रांड मैंगो, स्वीडन का फैशन ग्रुप H&M, जबकि लग्जरी हाउस बलेंसियागा रनवे शोज़ में टेक्नोलॉजी और AI को नुमाया कर चुका है। ब्रांड्स के लिए AI तेज़ रफ्तारी, कम लागत और लामहदूद तख्लीकी इम्कानात फराहम करती है। तो सवाल ये नहीं है कि AI फैशन में आएगा या नहीं, वो आ चुका है। असल सवाल ये है कि क्या लग्जरी ब्रांड्स जदीद टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए अपनी इंसानी महारत और वक़ार को बरकरार रख पाएंगे, क्योंकि फ़ैशन में तासुर ही सब कुछ होता है। और अब एक नज़र डालते हैं दीगर अहम आलमी ख़बरों पर। क्यूबा ने दावा किया है कि अमेरिका में रजिस्टर्ड एक तेज़ रफ्तार कश्ती पर मौजूद लोग जिन्होंने कोस्ट गार्ड्स पर फायरिंग की थी, दरअसल अमेरिका में मुकीम मुसल्लह क्यूबन थे। हुक्काम के मुताबिक इनके अज़ाइम दहशत गर्दाना थे। इस झड़प में कश्ती में सवार 4 अफराद हलाक हुए थे। अमेरिका ने इस वाक़े की तफ्तीश का हुक्म दे दिया है। अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि वाक़े को गैर मामूली करार दिया है। माहिर मौसमियात का कहना है कि हालिया दिनों में स्पेन, पोर्चुगल और मराकश में आने वाले 9 तूफ़ानों के लिए क्लाइमेट चेंज जिम्मेदार है। इन तूफ़ानों के नतीजे में दर्जनों अफराद हलाक हुए, जबकि जनवरी से फरवरी के दरमियान 1 लाख से ज़्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। हालिया दिनों में यूरोप के दीगर ममालिक में भी शदीद मौसमियाती तब्दीलियाँ देखी गई हैं। अमेरिका के शहर ओमाहा के एक मसरूफ़ चौराहे पर मंगल के रोज़ अचानक एक बड़ा सिंक होल खुल गया और 2 गाड़ियाँ इसमें गिर गईं। पुलिस के मुताबिक जब तक इमरजेंसी सर्विसेज पहुंची तब तक दोनों ड्राइवर गड्ढे में फंसी अपनी गाड़ियों से निकल गए थे। मकामी रिपोर्ट्स के मुताबिक सड़क को फिलहाल बंद रखा जाएगा ताकि ये देखा जा सके कि कहीं गड्ढा मजीद फैल तो नहीं रहा। और जापान में पैदाइश की शरह में मुसलसल 10वें साल भी कमी दर्ज की गई है और गुज़िश्ता बरस ये कमी रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई थी। ताज़ा सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता साल 7 लाख से थोड़े ज़्यादा बच्चों की पैदाइश हुई, जो कि गुज़िश्ता बरस की निस्बत 2.1% कमी है। अगर गैर मुल्की शोहरियों को शामिल करें तो ये तादाद मज़ीद कम हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक पैदाइश की गिरती हुई शरह जापान की हुकूमत के लिए संगीन चैलेंज बनती जा रही है। इसके नतीजे में लेबर मार्केट में कमी, समाजी तहफ़्फ़ुज़ के खर्च में इजाफा और टैक्स अदा करने वाले अफराद की तादाद में मज़ीद कमी का खदशा है। BBCI की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि नेपाल के आला पुलिस एहलकार ने गुज़िश्ता बरस के जेन ज़ी या नौजवान नस्ल की जानिब से किए गए एहतजाज के दौरान गोली चलाने का हुक्म दिया था। गुज़िश्ता बरस 8 सितंबर के एहतजाज के दौरान 19 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जिसमें स्कूल जाने वाले एक 17 साल स्टूडेंट श्रीराम चोलाइगन भी शामिल थे। BBC की सोबीना श्रेष्ठ की रिपोर्ट समीर कोकरो पेश कर रहे हैं। 8 सितंबर 2025 नेपाल की तारीख में एहतजाज का मोहलिक तरीन दिन। रात होने तक काठमांडू में 19 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया जाएगा। इनमें 17 साल श्रीयम चालुगैन भी शामिल हैं। स्कूल जाने वाला ये स्टूडेंट इन हजारों मुजाहिरीन में शामिल था जो हुकूमती करप्शन के खिलाफ एहतजाज में शामिल हुए थे। समाज में गैर बराबरी पर गुस्से से भरे इन नौजवानों ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को मुत्तहरिक किया था। वर्षौंदेखिको हामीले जुन अनुहारहरू रिपिटेडली हेरिरहेका थियौं, हमारी नस्ल उन लीडर्स के रवैये से तंग आ चुकी थी। त्यसप्रति हामी ये हमेशा से यहाँ काबिज हैं। कि हाम्रो पुस्ता सोशल मीडिया ट्रेंड्स शुरू हुए, उन लीडर्स और उनके खानदानों को बेनकाब किया जा रहा था। 60 साल छ नि त, विभिन्न नेताहरूको छोराछोरी अथवा नेताहरू एक्सपोज हुँदै थे। लेकिन एक पुरअमन एहतजाज खून रेजी पर कैसे खत्म हुआ? BBC को मिलने वाले पुलिस के अंदरूनी दस्तावेजात के मुताबिक दिन के 12:40 पर पुलिस रेडियो पर गोली चलाने की इजाजत दी गई थी। कर्फ्यू पहले ही नाफिज है, मजीद इजाजत लेने की जरूरत नहीं, जरूरी ताकत का इस्तेमाल करें। ये हुक्म पीटर 1 की तरफ से आया था। हम बता सकते हैं कि ये नेपाल के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंद्र कुमार खपुंग थे। उन्होंने जिम्मेदारी लेने से इनकार किया है। नेपाल की पुलिस ने BBC को बताया कि ये ऑर्डर हुकूमत की सिक्योरिटी कमेटी से पहले ही मंजूर हो चुका था। BBC ने उस दिन की 4000 से ज्यादा वीडियोस और फोटोज का फोरेंसिक जायजा लिया ताकि ये पता लगाया जा सके कि आगे क्या हुआ। श्रीयम को एहतजाज के दौरान यहाँ देखा गया था। मैंने उसे जाने से मना किया था। इन प्रोटेस्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी यूनिफॉर्म में हूँ, हम नाबालिग हैं, इसलिए हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। गोली चलाने का हुक्म मिलने के 2 घंटे से भी कम वक्त में कम से कम 4 अफराद को गोली मारकर हलाक कर दिया गया।
اور شریم کو ایک بار پھر ہجوم میں دیکھا گیا۔ اس کے آگے مظاہرین کا ایک گروپ پولیس پر پتھراؤ کر رہا ہے۔ شریم جو کہ غیر مسلح تھا تشدد سے دور ہٹتا ہے۔ یہ اس کے آخری قدم تھے۔ اگلے 48 گھنٹوں تک افراتفری کا ماحول تھا۔ پارلیمنٹ کو آگ لگا دی گئی۔ کم از کم 50 مزید لوگ مارے گئے اور وزیر اعظم مستعفی ہو گئے۔ اس واقعے کی سرکاری تحقیقات کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے۔ جہاں ایک طرف نیپال 5 مارچ کو نئے لیڈر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا انتظار کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف ان ہلاکتوں کے لیے ابھی تک کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے ذہن میں وہ اب بھی اپنی اسکول یونیفارم میں ہیں۔ وہ اپنا بیگ ہلاتے ہوئے آئے گا۔ میری خواہش ہے کہ وہ واپس آ جائے۔ میں اب تک یہ قبول نہیں کر پائی ہوں کہ اب وہ یہاں نہیں ہیں۔ آپ بی بی سی آئی کی مکمل دستاویزی فلم شاٹ لائک اینیمیز انسائیڈ نیپالز جین زی اپرائزنگ بی بی سی ورلڈ سروس کے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ بی بی سی آئی کی اس طرح کی دیگر تفتیشی رپورٹس اور دستاویزی فلمیں بھی ورلڈ سروس کے یوٹیوب چینل پر ہیں، آپ انہیں ضرور دیکھیں۔ آج بی بی سی نیوز اردو کے پروگرام جہنما میں بس اتنا ہی۔ پروگرام میں شامل سٹوریز اور تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آئیں۔ اس کے علاوہ بی بی سی نیوز اردو کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب، فیس بک اور ایکس اکاؤنٹ کو فالو کریں۔ وزن پر حیدر کو اجازت دیں، کل پھر ملاقات ہوگی۔